edition of Indian Historiography. We are on part 3. Alright. Our objective for today is students will be able to take notes on the different ideological frameworks used in Indian historiography and answer questions on the same. Alright. We're going to take notes on different ideological frameworks. Abhi ideological frameworks kya hai is what we are going to look at first, and then उसको कैसे यूज किया गया है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, यानी इंडिया के हिस्ट्री को लिखने में उसको कैसे यूज किया गया है. वी आर गोइंग टू लुक एट दैट एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन द सेम. राइट, मूविंग ऑन. नाउ quickly we are going to look at the three things we are going to do today. We are going to learn about three types of historiography: colonial historiography, orientalist historiography, and finally nationalist historiography. All right, we're going to learn these three things today. So I want everyone to keep your pen and notebooks ready. If you haven't, just do that right now. Remember to write down the notes that come on the screen, and also keep listening carefully to all the ideas that I'm going to talk about. All right, even the things that you might not see on the screen but I might say might be important, so please remember to note that down. All right, moving on. Now, first things first, in our objective we said we are going to look at different ideological frameworks. Now, what is an ideological framework? All right, so an ideology is a set of opinions, beliefs or thoughts related to a person or a group of persons. It shapes a person's actions. Alright, तो ideology basically क्या है, वो word में ही meaning है, ideas. Okay, so is a set of opinions. Opinions यानी खुद की राय, belief यानी तुम जिस चीज में यकीन करते हो, और thoughts यानी जो भी तुम्हारे मन में जो ख्याल है. Alright, related to a person or a group of person. One person thinking in a particular way or a group of people thinking in that particular way, so that thinking is known as an ideology. Alright, it shapes a person's action. जो जिस person का जैसा idea है, जैसे thoughts है, जैसे beliefs है, जैसे opinions है, वो वैसा ही सोचेगा. For example, if you look at this picture right now, you can see this person is thinking in the red puzzle pieces. पर इस person का thinking कैसा अलग है, इसका blue puzzle piece है. और जब वो दो बात करते हैं, then they are able to exchange ideas or they are able to combine their ideas. All right, so for example, someone might believe in the democratic ideology. Democratic ideology क्या है कि okay, we will vote for our government. Government का ऐसा मतलब कोई एक इंसान नहीं हो सकता. It should be a group of people running the country. But a monarchical ideology will be like, okay, हमें एक king चाहिए जो एक ही इंसान है जो सारे के सारे decisions लेंगे. Alright, so different ideologies are basically a set of opinions, beliefs or thoughts related to a person. Okay, now what is the main purpose? हम लोग ideology क्यों रखते हैं? Why do people keep ideology? The main purpose of an ideology is to bring out change in society by offering ideas that are different from the ones used in the present society. आइडियोलॉजी क्या है? इट्स अ सेट ऑफ आइडियाज और बिलीफ्स. तो वो क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर चेंज इन सोसाइटी. कोई भी अगर बदलाव लाना है सोसाइटी में तो लोग बोल सकते हैं कि हाँ, तुम अगर तुम्हें बदलाव लाना है तुम मेरे आइडिया को फॉलो करो. यू सी हाउ पॉलिटिशियंस रैली इन देयर कैंपेन्स, राइट? दे से दिस, अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो तुम्हें मुझे वोट करना चाहिए. वाई? बिकॉज एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो हैज एन आइडियोलॉजी. रिमेंबर, दे आर अ ग्रुप ऑफ पर्संस बट दे फॉलो वन सिंगल आइडिया. ऑलराइट, दे फॉलो वन और टू फ्यू आइडियाज ऑफ देयर ओन. उनके खुद के आइडियोलॉजी होता है. ऑलराइट, एंड आइडियोलॉजी होने से क्या होता है? लोग बदलाव ला सकते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पहले राजा महाराजा होते थे, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट आइडियोलॉजी टू हैविंग अ गवर्नमेंट ऑफ आवर ओन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें लोग गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं, लोगों को गवर्नमेंट में पहुंचाते हैं. ऑलराइट, कोई एक ऐसा रूल नहीं करता हम पे. ऑलराइट, नाउ फाइनली एन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन दोज ओपिनियंस, बिलीव्स एंड थॉट्स that can be applied in various scenarios. As I said, ideology को हर एक जगह में यूज कर सकते हैं. पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं, डिस्कशंस में यूज कर सकते हैं, मीडिया में यूज कर सकते हैं. तो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है? अभी आइडियोलॉजी हमें पता चल गया. फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चर. कैसा? मतलब उस आइडिया को तुम
एक स्ट्रक्चर देते हो ताकि तुम उसे यूज कर सको अलग अलग जगहों पे. फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टडिंग ऑल्सो वी कैन फॉलो अ आइडियोलॉजी. समझो फॉर एग्जाम्पल चाइना एज अ कंट्री फॉलोज अ नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी इन देयर एजुकेशन. वो लोग अपने नेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, राइट. बट दैट मे नॉट बी द सेम केस विथ लेट्स से यूएसए, राइट. एवरी कंट्री माइट फॉलो अ डिफरेंट आइडियोलॉजी क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट. नाउ मूविंग ऑन. Now, the first type of historiography we're going to look at is colonial historiography. Now, what does colonial mean? Okay. Now, colonialism is the practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it and exploiting it economically. Alright. So, colonialism क्या है कि the action of acquiring full and partial political control over another country. यानी एक कंट्री पे मतलब अपने आप आधा कंट्रोल लेना या पूरा कंट्रोल लेना किसी दूसरे कंट्री पे, राइट. ऑक्यूपाइंग इट में मतलब यानी उसी कंट्री में रहना, एंड एक्सप्लॉइटिंग इट इकोनॉमिकली मतलब उस कंट्री के मार्केट्स का फायदा उठाना अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, राइट. सो दैट इज कॉलोनियलिज्म. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स आर कॉलोनाइजर्स, राइट. वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहले एक कंट्री पे कब्जा करते थे, या तो पार्शियली या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड, वहां पे फिर रहने लगते थे, एंड एक्सप्लॉइटिंग इट इकोनॉमिकली वहां के मार्केट्स को कंट्रोल करते थे, वहां के रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट को वो लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है. नाउ द पीपल हु स्टडीड एंड रोट अबाउट इंडियाज हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरी. इंडिया का हिस्ट्री एज वी लर्नड इन द लास्ट लेक्चर वाज मेनली रिटन बाय ब्रिटिशर्स एंड other people who had come from abroad, all right. So when the Britishers came to India, they started writing about India उनके नजरिए से कि ओ इंडिया बहुत अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड नेशन है, इट इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, यहाँ के लोग बहुत पुराने ख्यालात के हैं, पुराने सोच के हैं, राइट. नाउ उसकी वजह से क्या हुआ, दीज their writings gave an outsider opinion on India's history and ridiculed it while justifying their rule. इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के हिस्ट्री का मतलब रिडिक्यूल व्हेन वी से इट्स कॉल्ड एक्चुअली मजाक उड़ाना, बट वो लोग मजाक नहीं उड़ाते थे इंडिया के हिस्ट्री का, वो एक्चुअली इंडिया के हिस्ट्री को एक बहुत बैकवर्ड नजरिए से या बहुत पुराने जमाने वाले नजरिए से देखते थे कि ओ इंडिया डेवलप्ड ही नहीं है, फ्रॉम वेरी अंडर डेवलप्ड पर्सपेक्टिव. तो उसकी वजह से क्या हुआ, दे कुड जस्टिफाई देयर रूल, यानी वो लोग बोलते थे कि क्योंकि ये लोग अंडर डेवलप्ड है, हमने यहाँ आके उनकी मदद करने के लिए उनपे कब्जा किया ताकि हम लोग उनकी मदद कर सके उनके डेवलपमेंट में. नाउ इज दैट नेसेसरीली ट्रू कि ब्रिटिशर्स की वजह से सब कुछ इंप्रूव हुआ? यस एंड नो बोथ. यस, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारी नए नए टेक्नोलॉजीज और नए नए चीजें इंडिया में आने लग गई. सो आई डू एग्री कि ब्रिटिशर्स की वजह से थोड़ा सा डेवलपमेंट पुश हुआ, बट डज दैट मीन दैट इट वाज ओके फॉर देम टू exploit us economically? Were they right in their way they made their strict rules and regulations? वो लोग सारा का सारा पैसा मतलब हड़प लेते थे दूसरे पुअर पीपल से इंडिया के. they were not very fair in terms of justice and they would arrest Indians left right center. Was that right on their part? No. But now coming back to the topic, तो जो राइटिंग्स थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी यानी जो ब्रिटिशर्स ने लिखा या जो भी किसी बाहर वाले ने लिखा जब उन्होंने एक कंट्री पे कब्जा किया, वो राइटिंग्स बहुत ही मतलब कंट्री के बारे में बुराई या करते थे ऐसे बोल सकते हैं, राइट. नाउ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1922 टू 1937 सीई इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हिस्ट्री ऑफ इंडिया है लेकिन किसके नजरिए से? कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स के या कैम्ब्रिज के टीचर्स के नजरिए से ये बुक पब्लिश हुआ इन 1922 टू 1937. अभी जो लोग कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में रिसर्च कर रहे हैं, उनको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में कितना ही पता होगा? ऑब्वियसली वेरी लिटिल. दे स्टडीड एंड दे बॉट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड, यस. बट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का बेसिकली एक ही प्रॉब्लम है कि जो लोग वो दूसरे कंट्री पे कब्जा करते हैं वो उस कंट्री का हिस्ट्री अपने नजरिए से बोलते हैं. उससे क्या डैमेज होता है?
उस कंट्री का हिस्ट्री लॉस्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ आई आस्क यू टू गो एंड सर्च अबाउट इंडियाज हिस्ट्री दैट इज नॉट रिटन बाय अ ब्रिटिशर और दैट इज ओनली रिटन बाय इंडियंस, यू विल फाइंड कि ब्रिटिशर्स में इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री लिखा है वो बहुत ज्यादा है. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ डैमेजिंग द कंट्रीज हिस्ट्री. क्यों? क्योंकि हमारे ही लोगों ने मतलब हिस्ट्री के बारे में ज्यादा लिखा नहीं, ज्यादा पढ़ा नहीं और उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया. तो दूसरे लोगों ने इसका फायदा उठा के हम पे कब्जा कर लिया, हम पे रूल करना शुरू कर दिया. राइट? और लोगों को भी यही लगता था कि चलो ब्रिटिशर्स हम मतलब पीछे लोग हैं या हम एक बैकवर्ड लोग हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा कर लिया. राइट? बट इफ आवर हिस्ट्री वाज स्ट्रांग, अगर हमें खुद के इंफॉर्मेशन पे, खुद के नॉलेज पे इतना भरोसा था, then chances are we would not have been captured and we would have received independence much earlier. All right, moving on. Now the second type of historiography is Orientalist historiography. So people from Europe and other Western countries took an interest in studying about life in the East. So you know the world is divided into two parts, the East and the West. All right, Western में countries like Europe, USA, a lot of these places come in. East में China, Japan, India, all of these countries come in. All right. So people from Europe and other Western countries took an interest in studying about the life in the East. तो जो वेस्ट में रहते थे लोग, उनको बहुत इंटरेस्ट था ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड या ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में पढ़ने के लिए. दीज पीपल आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. तो वो लोग हमको एक नजरिए से देखते थे कि वो ईस्ट एक ऐसी जगह है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब मैजिकल सा है. So these people wanted to study about it. So they are known as Orientalists. Okay. Now they studied the similarities and differences between the West and the East in language, culture, customs, etc. वो लोग क्या करते थे फिर जानने के लिए? वो स्टडी करते थे ईस्ट के बारे में. किन चीजों पे? लैंग्वेज के ऊपर पढ़ते थे, कल्चर के ऊपर पढ़ते थे, मतलब कल्चर यानी लोग कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, कस्टम्स यानी रीति रिवाज. ऑलराइट. नाउ एंड दे यूज्ड टू फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम टू. क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है कि हम कैसे कनेक्टेड है ईस्ट से और ईस्ट और वेस्ट को कंबाइन करके हमें क्या मिल सकता है. ऑलराइट. नाउ ओरिएंटलिस्ट इन इंडिया फोकस्ड मेनली ऑन संस्कृत एंड वैदिक लिटरेचर. ओरिएंटलिस्ट इन इंडिया ने क्या किया, मतलब जितने भी लोग बाहर से इंडिया में आए थे इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए, दे फोकस्ड मेनली ऑन टू थिंग्स. संस्कृत इज अ लैंग्वेज और अ स्क्रिप्ट एंड वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक टाइम्स में जो भी लिखा जाता था, जो भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, स्टडिंग दोज इंस्क्रिप्शंस. ऑलराइट. नाउ फ्रेडरिक मैक्स मुलर was an Orientalist scholar who studied Sanskrit literature and translated and edited Sanskrit texts and knowledge. Alright. So this is a picture of Frederick Max Muller. Alright. He was an Orientalist scholar. मतलब वो एक Western scholar थे who studied about Sanskrit literature. And what did he also do? He also translated and edited Sanskrit text. He was so learned that he translated यानी संस्कृत को इंग्लिश में या अपने उसके नेटिव लैंग्वेज में बदल के उसने लिखवाया वापस. एंड ही ऑल्सो शेयर दैट नॉलेज इन डिफरेंट बुक्स. फॉर एग्जाम्पल हितोपदेश इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स. यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस टाइटल. ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन. Finally, we are on the third type of historiography, that is nationalist historiography. Okay. Now, नाम से ही पता चला nationalist यानी nation के बारे में. Okay. The colonial writing of India's history had altered the way people viewed India. अभी we just learned about colonial historiography. Colonial historiography ने क्या किया था? इंडिया के हिस्ट्री को डैमेज किया था. इन द सेंस कि ब्रिटिश के नजरिए से हिस्ट्री पढ़ रहे थे सब लोग, लेकिन इंडिया के नजरिए से हिस्ट्री था ही नहीं. ऑलराइट. तो उसकी वजह से क्या हुआ? इंडियाज हिस्ट्री हैड ऑल्टर्ड द वे पीपल व्यूड इंडिया. तो उस राइटिंग की वजह से जो इंडिया का हिस्ट्री था वो लोगों के नजरिए में बदल चुका था. ओके. सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन? इंडियन हिस्टोरियंस टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग आउट एंड एक्सप्रेसिंग द प्राइड अबाउट इंडियाज हिस्ट्री. तो इंडियन के हिस्टोरियंस ने या इंडिया में जो हिस्ट्री पढ़ने वाले थे, they took the responsibility of bringing out and expressing the pride about India's history. इंडिया के हिस्ट्री पे हमको गर्व करना चाहिए या मतलब प्राइड रखना चाहिए, वो उन्होंने शुरुआत किया. हाउ डिड दे डू दैट? दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट आउट एंड एक्सप्रेसिंग द प्राइड. कैसे? सो दे वुड ऑब्वियसली स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इंडियाज हिस्ट्री,
दे वर मोर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेजेस. तो क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेजेस ज्यादा पता है, उनको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में ऑटोमेटिकली ज्यादा पता होगा. ऑलराइट, उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब इंडिया के नजरिए से कैसे होता था. तो वो इंडिया के नजरिए से हिस्ट्री पढ़ते थे एंड दे वुड ब्रिंग आउट द प्राइड. मतलब वो लोग इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर जो गर्व कर सकते हैं, जो खुशी मना सकते हैं, वो उसको बाहर लाते थे अपने राइटिंग्स के थ्रू. क्यों लाते थे? क्योंकि वो राइटिंग्स जो ब्रिटिशर्स ने लिखा था, दे हैड ट्विस्टेड इंडियाज हिस्ट्री. सो इंडिया का हिस्ट्री दैट वाज ट्विस्टेड ड्यू टू ब्रिटिश और द कॉलोनियल पॉलिसी, जो हमारा हिस्ट्री डैमेज हुआ था, मतलब बदल चुका था ब्रिटिशर्स के राइटिंग्स की वजह से, वो उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की. ऑलराइट, नाउ देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक राइटिंग. उनके राइटिंग को क्या बोलते थे? नेशनलिस्टिक. ओरिएंटलिस्ट के राइटिंग को ओरिएंटल राइटिंग बोलते थे, इनके राइटिंग को नेशनलिस्ट राइटिंग बोलते थे, यानी देश के लिए या देश के ऊपर राइटिंग. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, केपी जायसवाल, they were nationalist historians who worked upon restoring the pride of India. अभी ब्रिटिशर्स के हिस्ट्री ने इंडिया के प्राइड या इंडिया के रिस्पेक्ट को डैमेज कर दिया था, एज वी स्पोक बिफोर. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू पीपल. दिस इज महादेव गोविंद रानडे, दिस इज महादेव गोविंद रानडे, दिस इज गोपाल भंडारकर, दिस इज केपी जायसवाल. दे वर अ फ्यू पीपल हु wrote about India's history from the local perspective, from the पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री. और इसके वजह से वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग देश का गर्व या देश का गौरव जो है, जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ा रहे थे. क्यों? क्योंकि पीपल हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस बैक देन. इंडिया का हिस्ट्री कौन जानता था? कोई नहीं. और ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठा के हम पे कब्जा कर लिया कि वी वर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवर ओन हिस्ट्री, इन आवर ओन कस्टम्स, इन आवर ओन कल्चर. तो उसकी वजह से हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आ गए. बट now what were they trying to do? They were trying to restore that history. हिस्ट्री को रिस्टोर करने से, इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने से, या इंडिया के बारे में ऐसी बातें करना जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए, what will that do in the end? That will help us gain our confidence and fight in the independence period, and that is what they were trying to do. इंडिपेंडेंस के दौरान लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कि इंडिया कैन बी इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन. हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है हमें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए. वी हैव आवर ओन हिस्ट्री और हमारे हिस्ट्री पे हमें गर्व है, हमें प्राइड है. दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट. ओके, नाउ V.K. Rajwade, a nationalist historian of the firm, believed that we should write our own history. So this is a picture of V.K. Rajwade. What was his opinion? कि हमें अपना हिस्ट्री खुद से लिखना चाहिए. Again, very nationalist perspective. देश का हिस्ट्री को कौन लिख सकता है? कोई बाहर वाले को नहीं लिखना चाहिए, हमें खुद से लिखना चाहिए. Alright? He is a well-known Marathi writer who wrote and edited 22 volumes of मराठांच्या इतिहासाची साधने. मराठांच्या यानी मराठी लोगों के, इतिहासाची यानी हिस्ट्री के, एंड साधने मतलब मेथड. तो मराठी लोगों के हिस्ट्री पढ़ने के मेथड्स. ऑलराइट, ही वाज अ मराठी राइटर हु रोट 22 वॉल्यूम्स ऑफ दिस. ऑलराइट, नाउ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर was an important example of nationalist ideology. So Savarkar is the name that you will hear a lot when it comes to nationalism, right? He wrote a lot about India's history from India's perspective, and especially from a Hindu perspective, ki how Hindus had sort of developed the culture and the history of India. Okay, now nationalist historiography boosted the Indian independence movement as people grew more aware of their country's history. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा था, people when they are educated about their own history, their own beliefs, they are stronger. They will stay and stick with that. All right, they will not start changing their customs or changing the way of their life. For example, if you notice, even right now in Indian homes, many people now all across the world don't follow religion as much. लेकिन इंडिया में आज भी रिलीजन को बहुत मतलब हाईली माना जाता है. रिलीजन को बहुत, in fact India follows a lot of diverse religions. All right, why are religion still followed in India? इंडिया का बैकवर्ड कंट्री है क्या कि रिलीजन फॉलो कर रहे हैं? नहीं, रिलीजन फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बैकवर्ड होता है. बट
you have grown more aware of your history when you study about these religions or when you study about these customs and their language. तो people grow more confident in their own way of life. और उसकी वजह से क्या होता है, अभी हम जो करें वो हम कर रहे और कोई हमें दूसरा हम पे कोई हक नहीं जमा सकता, कोई हम पे कब्जा नहीं कर सकता. ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन दैट्स व्हाट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थॉट वाज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री. अभी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की वजह से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्ट मिल गया. पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग मोर एजुकेटेड, मोर अवेयर ऑफ देयर कंट्री. तो वो लोग कंट्री के लिए और लड़ने लग गए और अपने हक और राइट्स के लिए लड़ने लग गए. ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल women at first in India were sometimes provided education, all right, in different spaces, but Britishers के आने के बाद that mostly stopped. Now that sort of like created an issue. Now when you know about your history कि हाँ पहले women पढ़ते थे लेकिन Britishers के आने के बाद women को oppress किया जा रहा है या women को rights नहीं दिए जा रहे हैं, तो when you are aware of this fact, when you're educated about this history, only then you can fight for your right, only then you can fight for your independence. All right, it also gave a push to the writing of regional history. India is a very diverse country, every part of the country has very different people, very different culture, different languages, different customs. So every history in India is different. इंडिया का एक कलेक्टिव हिस्ट्री नहीं है, हर एक जगह का अपना अपना हिस्ट्री है. तो नेशनलिस्ट हिस्ट्री का क्या मतलब रिजल्ट हुआ कि रीजनल हिस्ट्री यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह के हिस्ट्री का लिखने पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, साउथ इंडिया एंड इट्स हिस्ट्री वॉज वेरी मार्जिनलाइज यानी उसके ऊपर ज्यादा लोग काम नहीं करते थे या उसके ऊपर ज्यादा लोग मतलब पढ़ते नहीं थे. बट बिकॉज ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी साउथ इंडियन हिस्ट्री पे भी फोकस आने लग गया. एक पर्टिकुलर जगह या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेट्स के ऊपर अभी फोकस शिफ्ट हो गया. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव. यू आर supposed to answer these questions in your notebooks. Alright, I'm quickly explaining the questions. What was Sir William Jones' contribution to Indian history? Now you have to find this answer in your textbook कि Sir William Jones ने Indian history के लिए क्या किया. That's what you have to find. Second is, how did V.K. Rajwade promote historical research? V.K. Rajwade ने historical research यानी history के ऊपर research को कैसे promote किया? You have to find that answer in your textbook again. And finally, third question is, distinguish between Orientalist and Nationalist historiography based on the following points. तुम्हें distinguish करना है. We learned last year how to write a distinguish between. दो अलग साइड पे टेबल बनाया जाएगा और एक कॉमन पॉइंट रहेगा ना. व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स? एरिया ऑफ फोकस. ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किस पे फोकस करता था, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किस पे फोकस करता था. दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ हिस्टोरियंस. ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस कौन थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कौन थे. दैट्स योर सेकंड पॉइंट. एंड फाइनली ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स और वर्क्स कौन से थे और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और nationalist writings या works कौन से थे. That's what you have to write. All right. So I want you to answer these questions in your notebook and you have to upload your notes on Google Classroom. All right. That brings us to the end of our lecture, students. Thank you so much for attending. I hope you had fun. I hope you have some new knowledge about historiography in India. All right. Do answer these questions in your notebook on time and I hope to see the tracker filling a lot today. Alright, keep working hard and have a nice day all of you.